A very good morning to all of you. This is Abhilasha Nahata, your social science teacher. So class, today we all are going to continue our chapter number 2, land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources. And our today's topic is land conservation, conservation of land resources. And after that, we will talk about soil. We will go through this topic, soil. Okay. So now, in our previous class, we discussed about what is land, and after that, we have seen the uses of land, how land uses changes over time. Okay. So now our today's topic is conservation of resources. So our today's topic is conserving land resources, or you can say conservation of land resources. So as you all know, growing population and their ever-growing demand has led to a large-scale destruction of forest cover and arable land and has created a fear of losing these natural resources. So as you all know, what is happening in the world, population is growing and growing. ठीक है, रिसोर्सेज से ज्यादा क्या हो रहा है, पॉपुलेशन ग्रो कर रही है. एंड with the growth of population, with the increase in population, what is happening, obviously if population is increasing, their demand will also increase. ठीक है, demand for food, demand for house, demand for water, etc. So indirectly it led to a large scale destruction of forest because our demand is growing. Okay, our demand is growing, but the resources are scarce, land is limited, agricultural land is limited. So what we are doing to fulfill our needs, what people are doing to fulfill their needs, it led to a large scale destruction. They are deforesting. Okay, they are cutting the trees, they are cutting the forest area, forest cover area, and they are using that area for agriculture. Okay, so now and arable land, what is the meaning of arable land? Arable land का मतलब होता है बेटा आपका, yes, arable land means land which is temporary. ठीक है, टेम्पररी लैंड को हम बोलते हैं. टेम्पररी जब आप एग्रीकल्चरल क्रॉप्स के लिए जब किसी लैंड को यूज करते हो, दैट लैंड इज नोन एज एरेबल लैंड. ओके, सो नाउ व्हाट पीपल आर डूइंग फॉर fulfilling their needs, they are deforesting, they are using arable land, they has created a fear of losing these natural resources, and it has created a fear of losing natural resources. Obviously if we are like cutting down the forest, if आप देख ही रहे हो कितना गर्मी है, अभी अगस्त चल रहा है and we are facing like a summer, hot summer, just like we faced it in May. ठीक है, it is just because of the global warming, because of the deforestation, because of the using of natural resources so much. ठीक है, हम जो फ्यूल्स हैं, डीजल है, पेट्रोल है, ये सब क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं. ठीक है, नाउ एवरीबडी इज यूजिंग एसीज. ठीक है, ज्यादा से ज्यादा व्हीकल्स चल रहे हैं. ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, इससे we wanted to fulfill our need. Okay, that's why we are using vehicles, cars, vehicles and all. We are using ACs. Okay, we are using like we are building and constructing houses more and more. So it is naturally what it is what is happening in reality. जो नेचुरल रिसोर्सेज है, फॉरेस्ट रिसोर्सेज स्कार्स हो रहे हैं. ठीक है, जस्ट फॉर द एग्रीकल्चरल लैंड, फॉर द फूड, फॉरेस्ट रिसोर्सेज स्कार्स हो रहे हैं, फॉरेस्ट रिसोर्सेज जो हैं कम हो रहे हैं, एंड इससे ऑब्वियसली हमारे इन्वायरमेंट में बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है इससे. ठीक है, द प्रेजेंट रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ लैंड मस्ट बी चेक. इट इज हाउ डू वी कंजर्व रिसोर्सेज. ठीक है, we can conserve it like we have to check the present rate of degradation कि कितने परसेंटेज में, किस रेट से हम जो है लैंड को डिग्रेड कर रहे हैं. वी आर यूजिंग लैंड फॉर द एग्रीकल्चरल पर्पस और एनी इंडस्ट्रियल पर्पस और एनी अदर पर्पस. किस रेट से कर रहे हैं, वो रेट ज्यादा तो नहीं है. वी हैव टू चेक इट, वी हैव टू कंट्रोल इट.
After that, some methods are there which we can use to conserve land resources. And what are these? These are like afforestation. We have to build more and more trees, plants. This is called afforestation. जब हम ज़्यादा से ज़्यादा plants grow करते हैं, पेड़ों को, trees को plant करते हैं, that is known as afforestation. So we should plant more and more trees. Land reclamation. What is the meaning of land reclamation? Land reclamation means like landfill, the process of creating new land from oceans, seas, riverbeds, lakelets. ठीक है, जो लैंड्स डिग्रेड हो चुकी है उसको फिर से रिक्लेम करना. ठीक है, जो बैरन हो चुकी है, कुछ लेक्स वगैरह जो सूख चुके हैं, ठीक है, उनको रिक्लेम कर सकते हैं हम. ठीक है, रिक्लेमिंग मीन्स टू फिल इन, लैंडफिल. Regulated use of chemical pesticides and fertilizers. Now in this era, for our production, for the agricultural production, what farmers or some industrialists are doing, they are using more and more chemical pesticides, fertilizer, insecticides for the more and more production, and obviously it will lead to the destruction. So we should regulate the use of chemical fertilizers, pesticides, etc., because eventually it will degrade our land if we use it more and more. Okay, so we should regulate the use of chemical pesticides. Next, checks on overgrazings. Now lands are like very limited. ठीक है, जितने भी आपके जो ग्रेजर्स वगैरह होते हैं, हर्डर्स वगैरह होते हैं, दोज हू रियर एनिमल्स, ठीक है, शीप, गोट्स. स्कूल आते हो, जब आप स्कूल आते थे तो आप देखते थे कि सुबह सुबह क्या हो रहा था. सुबह सुबह बहुत सारे ऐसे 2-3 लड़के होते थे या कुछ, वो बहुत सारे शीप को या फिर गोट्स को क्या है ग्रेज करवाने लेके जाते थे, खाना खिलाने लेके जाते थे. ठीक है, आसपास के एरिया में बहुत बार आपने देखा होगा. तो नाउ व्हाट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ because of the more demands for land use, like what is happening, we are using the present land more and more, and जो भी grazing lands थी उसका क्या हुआ, grazing land क्या हो रही है, कम होने लगे. we use that grazing land for agriculture purpose. So eventually ग्रेजिंग लैंड्स कम होंगे तो अब जो ग्रेजर्स होंगे, जो एनिमल्स होंगे, वो खाना कहाँ खाएंगे, वो ग्रेज कहाँ करवाएंगे अपने एनिमल्स को ना. तो इससे क्या हो रहा है, जितनी लिमिटेड ग्रेजिंग लैंड्स रह चुके हैं ना, वहीं पे ओवर ग्रेजिंग हो रही है. ठीक है, खाना है 10 शीप के लिए, ठीक है, वहां पे प्लांट्स जो ग्रो हुए हैं 10 शीप के लिए ही उतना ही खाना है, बट हम खिला कितने को रहे, 50 शीप को खिला रहे हैं. तो ये नहीं होना चाहिए. ठीक है, ये ओवर ग्रेजिंग है. तो वी शुड स्टॉप दिस एंड वी शुड like protect the grazing lands for the livestock. So now, by making rules related to soil and land conservation, and by making the farmers educated regarding the negative aspects of overgrazing and overutilization of fertilizers, the government can play an active role to preserve the soil and land. Now here comes government. It plays a very vital role in our economy. So in this case also, for the conservation of land and soil also, government can play a very active role here. They can educate farmers through various TV programs, agricultural programs, through various radio programs, थ्रू वेरियस लाइक एक्टिविटीज ऐसी करवा सकते हैं फार्मर्स फार्मिंग लैंड्स में, या फिर कुछ ऐसे टीवी चैनल्स जो प्रोग्राम्स बना सकते हैं जिससे कि फार्मर्स को एजुकेट कर सके रिगार्डिंग द नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ ओवरग्रेजिंग, कि अगर हम ओवरग्रेजिंग करवाते हैं तो उसके क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स होंगे, हमारे लिए क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं इन फ्यूचर में. तो वी शुड educate farmers regarding the negative aspects of overgrazing and overutilization. What will happen in future if we overutilize fertilizer, we will overuse the fertilizers or chemicals or pesticides. तो इससे क्या होगा, ठीक है, 1 साल 2 साल 3 साल
हम we are using fertilizer, we are using pesticide and production is like blooming, but जो अंदर से रूट्स हैं, अंदर से तो जमीन क्या हो रही है, बंजर हो रही है ना. So we should stop it, we should educate farmers about it. So and in this government can play a very important role. The government should introduce agricultural programs, TV programs, radio programs, etc. time to time for the education of farmers. Now landslides, बहुत बार आपने ये टर्म सुना होगा. मोस्टली यू हर्ड अबाउट दिस. लैंडस्लाइड हो गया हिमाचल में, उत्तराखंड में लैंडस्लाइड हो गया. ठीक है, हो सकता है बहुत बार आपको समर वेकेशंस में हॉलीडे के लिए क्या है, कहीं मनाली या कुल्लू मनाली या रोहतांग पास या कहीं कहीं जाने का सोच रहे होते हो, तो एट दैट टाइम क्या न्यूज आती है कि लैंडस्लाइड हो गया, तो कैंसिल कर देते हैं, नहीं अभी जाना सेफ नहीं है. तो सुना होगा लैंड. तो होता क्या है ये लैंडस्लाइड्स? Landslides are simply defined as the mass movement of rock, debris or earth down a slope. Now what is landslide? What are landslides? Mass movement. Mass movement मतलब जब बहुत, मास मतलब होता है कि जब लार्जली, ठीक है, बहुत सारा अमाउंट, या फिर हम बोलते हैं ना मास मूवमेंट मतलब कि बहुत सारे लोग साथ में जब मूव करते हैं, तो जब बहुत सारे रॉक्स साथ में मूव करने लग जाते हैं, ठीक है, रॉक्स या डेब्रिस. डेब्रिस क्या होता है? पीस फ्रॉम समथिंग दैट हैज बीन डिस्ट्रॉयड. ऐसी चीजें, ठीक है, रॉक्स, पहाड़ वहाड़ बने हुए हैं, उसमें से रॉक्स टूट गए हैं, अब वो रॉक्स ब्रेक हो के क्या हो रहा है कि डिस्ट्रक्शन हो रहा है. अकॉर्डिंग, जैसे ये पहाड़ है ये, ठीक है, अब इसमें से इतना एरिया जो है ब्रेक हो चुका है. अब ये ब्रेक होके क्या है, यहाँ पे एक रोड है, अब यहाँ पे क्या करेगा ये, कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय तो करेगा ना, डिस्ट्रक्शन तो करेगा, एक्सीडेंट्स करेगा. ठीक है, ये डेब्रिस का, ये पहाड़ का एक टुकड़ा है, एक रॉक का कोई टुकड़ा है, वो गिर जाता है. कोई व्हीकल जा रही है, कोई इंसान जा रहा है, इसके ऊपर गिर जा रहा है. तो ये जो छोटा सा टुकड़ा होता है ना, डिस्ट्रॉयड जो मटेरियल है, वो जब किसी के ऊपर पड़ता है, ठीक है, या फिर उससे एक्सीडेंट्स होने के चांसेस होते हैं, उसको हम बोलते हैं डेब्रिस. ठीक है, सो अर्थ डाउन स्लोप, और अर्थ जो है उससे अर्थ उस टाइम पे क्या होता है, मूवमेंट होता है, रॉक्स की मूवमेंट होती है, तो बहुत सारे रॉक्स वगैरह गिर जाते हैं. अर्थ डाउन स्लोप, स्लोप के डाउन में अर्थ जो है कि नीचे से जो टेक्टोनिक प्लेट्स वगैरह है वो मूव कर जाती है, तो दीज आर कॉल्ड लैंडस्लाइड्स. ठीक है, so they often take place in conjunction with earthquakes, floods and volcanoes. स्पेशली कब होते हैं लैंडस्लाइड्स? जब अगर कोई अर्थक्वेक्स आ गए हैं, ठीक है, या फिर वोल्केनो इरप्ट हुआ है, या फ्लड्स आए हैं, उस टाइम पे ज्यादा चांसेस होते हैं, ज्यादा चांसेस होते हैं लैंडस्लाइड्स के. कंजंक्शन का मतलब क्या होता है? कंजंक्शन मीन्स जब हम किसी वर्ड को किसी दूसरे फ्रेज के साथ यूज करते हैं, ज्वाइन करते हैं, या किसी सेंटेंस के साथ ज्वाइन करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कंजंक्शन. ठीक है, तो कंजंक्शन ऑफन टेक प्लेस इन कंजंक्शन, मतलब अर्थक्वेक के साथ कभी आ जाता है, कभी फ्लड्स के साथ हो जाते हैं लैंडस्लाइड्स, कभी वोल्केनोज के साथ हो जाता है. तो वी यूज लैंडस्लाइड्स फॉर दीज टर्म्स आल्सो. इनके वजह से जो और दूसरी नेचुरल कैलेमिटीज होती है उनको हम बोलते हैं. ठीक है, a prolonged spell of rainfall can cause heavy landslide that can block the flow of river for quite some time. Now sometimes what happened, heavy rainfall हो रहा है, तो रेनफॉल के साथ साथ क्या है, और उस टाइम पे लैंडस्लाइड भी हो चुका है. लैंडस्लाइड्स की वजह से क्या हो गया, एक डेब्रिस है, एक रॉक का टुकड़ा है, वो क्या है बीच में आके, बहुत बड़ा रॉक बीच में आके गिर गया. समटाइम्स वो ब्लॉक कर देता है, जो रिवर का फ्लो है उसको रॉक जो है वो ब्लॉक कर देता है, और इसके वजह से भी बहुत बार फ्लड्स भी आ जाते हैं. The formation of river blocks can cause havoc to the settlements downstream on its bursting. Now the formation of river blocks can cause havoc. Havoc means जो damage की situation हो जाती है ना. So sometimes what happens, because of these landslides river blocks हो जाती है, and because of that block बहुत सारी हमें डिस्ट्रक्शन को, डैमेज को देखना पड़ता है. हैवक का मतलब होता है डैमेज.
टू द सेटलमेंट्स, ठीक है, जो आसपास में जो हिली एरियाज में जो लोग रहते हैं, ठीक है, और रिवर का ब्लॉक हो जाने से फिर वहां पे फ्लड आ जाता है, तो जो जितने भी लोग आसपास रहते हैं ना, डाउन स्ट्रीम, स्ट्रीम के पास, मतलब रिवर के पास जो रहते हैं, तो उनको बहुत कुछ डैमेज जो है फेस करने को मिलता है. In the hilly terrain, landslides have been a major and widely spread natural disaster that often strike life and property and sorry occupy a position of major concern. So in the hilly terrain, terrain मतलब होता है एरिया, ठीक है, या रीजन बोल दो या टाइप ऑफ लैंड बोल दो, ठीक है, कि किस कैसा टेरेन है. टेरेन का मतलब आप लैंड ऑफ द टाइप ऑफ लैंड बोल दो आप, ठीक है. इन द हिली रीजन, इन द हिली लैंड, लैंडस्लाइड्स हैव बीन अ मेजर एंड वाइडली स्प्रेड नेचुरल. नॉर्मली हम हिली एरिया में ही देखते हैं ये एज अ नेचुरल डिजास्टर लैंडस्लाइड्स होते हुए. एंड इट ऑफन दैट ऑफन स्ट्राइक लाइफ एंड प्रॉपर्टी. काफी डैमेज, काफी लाइफ डैमेज हम देखते हैं, काफी हमें प्रॉपर्टी डैमेज देखने को मिलता है. जस्ट लुक एट दिस पिक्चर. ड्रॉप्स के क्या है, लैंडस्लाइड होने की वजह से कभी कभी आग वाग भी लग जाती है, ठीक है. आसपास के एरियाज में क्या होता है, वो प्रॉपर्टी डैमेज हो जाती है. तो उससे और भी बहुत सारे जो है कंसर्न्स हैं जो हमें देखने चाहिए, ठीक है. बहुत सारे ऐसे कंसर्न्स हैं जो होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो बिकॉज ऑफ लैंडस्लाइड हमें फेस करने को मिलती है. So now there is a case study. A massive landslide hit Pangi village near Rekongpio in Kinnaur district of Himachal Pradesh and damaged a 200-meter stretch of old Hindustan-Tibet road, National Highway 22. This landslide was triggered by intense blasting at Pangi village. Due to the blasting, this weak zone of slope collapsed and caused intense damage to the road and nearby villages. The Pangi village was completely evacuated to avoid any possible loss of life. So now, Pangi village, it is near Rekongpio in Kinnaur. Kinnaur एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है हिमाचल प्रदेश में. किन्नौर सुना होगा आपने. वहां पे एक पांगी विलेज है छोटा सा. वहां पे एक बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ था. क्या हुआ था, और इस लैंडस्लाइड की वजह से एक तिब्बत रोड थी जिसको हम नेशनल हाईवे 22 बोलते हैं, 200 मीटर स्ट्रेच, ठीक है, 200 मीटर तक स्ट्रेच थी, वो क्या हो चुकी थी, डैमेज हो चुकी थी. दिस लैंडस्लाइड वाज ट्रिगर्ड बाय इंटेंस ब्लास्टिंग. और इस लैंडस्लाइड से जो पांगी विलेज में बहुत ज्यादा क्या हुआ था, डैमेज हुआ था, एक ब्लास्ट हो चुका था, फायर मतलब कि आग लग चुकी थी. एंड ड्यू टू द ब्लास्टिंग, this weak zone of slope collapsed and caused intense damage to the road and nearby villages. और इस ब्लास्टिंग की वजह से जितने भी वीक जोन्स थे वो क्या हो चुके थे, कोलैप्स हो चुके थे, डैमेज हो चुके थे, और जो रोड्स थी, नियर बाय विलेजेस थे, वो भी काफी डैमेज हो चुके थे. सो नाउ फॉर द टू अवॉइड एनी पॉसिबल लॉस ऑफ लाइफ, व्हाट पांगी विलेज में अब क्या है, पांगी विलेज को पूरा कंप्लीटली फ्री कर दिया है, कंप्लीटली खाली कर दिया है. वहां पे कोई भी लोग नहीं रहते हैं. ड्यू टू दिस लैंडस्लाइड इससे काफी लॉस हुआ था, ठीक है. So now mitigation mechanism, this is a term, mitigation mechanism. इससे क्या होता है, मिटिगेशन मीन्स सीरियसनेस, ठीक है, बहुत ही सीरियस इशू है. सो सम advancements are there. Advancements in scientific techniques has empowered us to understand what factors caused landslides and how to manage them. ठीक है, अब सीरियस इशू है, अब इस सीरियस इशू को देखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है. तो सम साइंटिफिक टेक्निक्स आर देयर जो हमें बताते हैं कि क्या ऐसे कॉजेस हैं जिसके वजह से हमें ये लैंडस्लाइड्स देखने को मिलती हैं. Some broad mitigation techniques of landslides are hazard mapping to locate areas prone to landslides. ठीक है, hazard mapping. hazard mapping क्या होता है, hazard mapping, hazardous means क्या होता है, something which is very much like dangerous. So जो भी एरियाज हैं, जो भी डेंजरस एरियाज हैं जहां पे लैंडस्लाइड्स हो सकते हैं, तो इन टेक्निक से, मिटिगेशन टेक्निक से हम
पता कर सकते हैं कि क्या ऐसे कौन कौन से एरियाज हैं और वहाँ वहाँ पे हम क्या है पहले से उस गांव को खाली करवा सकते हैं या फिर लोगों को शिफ्ट कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वॉल टू स्टॉप लैंड फ्रॉम स्लिपिंग। हम रिटेंशन वॉल को क्या कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं। रिटेंशन वॉल मतलब क्या होता है, रिजिड वॉल्स, ठीक है। रिजिड वॉल्स यूज्ड फॉर सपोर्टिंग सॉइल, ठीक है। सॉइल को सपोर्ट करने के लिए हम रिजिड वॉल्स को बना सकते हैं जिससे कि लैंड जो है स्लिप ना करे। इंक्रीज इन द वेजिटेशन कवर टू अरेस्ट लैंडस्लाइड्स। वेजिटेशन कवर, ज्यादा से ज्यादा ट्रीज को ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। वेजिटेशन कवर से क्या होगा, लैंडस्लाइड होने के चांसेस कम होते हैं। The surface drainage control works to control the movement of landslide along with rainwater and spring flow. Surface drainage control, ड्रेनेज कंट्रोल को हमें क्या है स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, ठीक है, जिससे कि हम लैंडस्लाइड की मूवमेंट्स को या फिर लैंडस्लाइड की जो मूवमेंट है, ठीक है, उसके वजह से रेन वाटर या स्प्रिंग फ्लोज में क्या है ब्लॉकेजेस नहीं आए, ठीक है। सो दीज आर लाइक सम ऑफ द मिटिगेशन मैकेनिज्म, ठीक है, साइंटिफिक मैकेनिज्म्स हैं जिससे कि हम ये सारी चीजें जो लैंडस्लाइड के कॉजेस है उसको हम रोक सकते हैं। ओके, सो this is all about today. Thank you so much for joining the class, everybody. Go through the topic, and if you face any problem, do let me know. Bye bye, take care, have a nice day ahead.